हेलो स्टूडेंट আমি আলোচনা কৰি আছিলোঁ নন বেংকিং ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউশ্যনৰ আজি আমি আলোচনা কৰিম মানে নন বেংকিং ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউশ্যনটো আমি এই মিটটো আমি আলোচনা কৰি আছিলোঁ আৰু আজি আমি আলোচনা কৰিম নেশ্যনেল বেংক ফৰ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট অৰ্থাৎ নাবাৰ্ড ওকে আজি আমি কিহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম টুডে উই হেভ ডিছকাছ এবাউট নাবাৰ্ড বেসিক্যালি কি হয় The lighting recommendation of the committee to review the agreement of institution credit for agriculture and rural development. Okay? The light committee এটা কি কৰিলে দেখা পালে যে এগ্ৰিকালচাৰৰ কাৰণে এটা সেপাৰেটলি বেংক থাকে যিটো বেংকে অকল কিহৰ ওপৰত কাম কৰিব পাৰে এগ্ৰিকালচাৰৰ ওপৰত কাম কৰিব পাৰে আৰু যে কি কৰিব ভাৰতবৰ্ষত ই এপেক্স বেংক ইনষ্টিটিউশ্যন হিচাপত কাম কৰিব পাৰে কাৰণ আমাৰ অলৰেডি ভাৰতবৰ্ষৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কাৰণে ডেভেলপমেণ্ট বেংক হ'ল কমাৰ্চিয়েল বেংক হ'ল কিন্তু ছেপাৰেটলি এগ্ৰিকালচাৰ বেংকৰ কাৰণে তেনেকুৱা কোনো সুবিধা নাছিলে কানাগাৰ ফলত কি কৰিলে The Light Committee have been recommended to the government, Indian government, that we should be need a agriculture bank because India is a agriculture based country. That is the point of view taken by Indian government and set up the Indian government July 12, 1982 separate APEC institution has been set by Indian government named NABARD. অর্থাৎ যে ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টে জুলাই 12 তাৰিখে 1982 চনৰ এগ্ৰিকালচাৰৰ কাৰণে কি কৰিলে এগ্ৰিকালচাৰ বেংকৰ কাৰণে এটা সেপাৰেটলি এটা বেংক স্থাপন কৰিলে যিটো বেংকৰ নাম দিলে কিহৰ নেশ্যনেল বেংক ফৰ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট অৰ্থাৎ নাবাৰ্ড যাক চমুকৈ আমাৰ নাবাৰ্ড বুলি কোৱা হয় আৰু এই বেংকটো স্থাপন কৰাতে কি কৰে বাই মেনেজিং দ্য এগ্ৰিকালচাৰ ক্ৰেডিট ডিপাৰ্টমেণ্ট of the RBI separate যেটো RBI যেটো separate part আছিল কি হয় agriculture credit department and agriculture refinance and development corporation অর্থাৎ ARDC দুটা মিশ্রণ কৰা কি কৰিলে 1982 চনত এগ্ৰিকালচাৰৰ কাৰণে কৃষিৰ কাৰণে এক বেংকৰ স্থাপন কৰিলে যিটো বেংকৰ নামে হৈছে নাবাৰ্ড এইখিনি হৈছে নাবাৰ্ডৰ উৎপত্তিত চমু এটা তোমাৰ বিৱৰণ এইখিনি লিখিলে আমি 2 মাৰ্কস পামে just we have to write this one and we will get 2 marks okay अगर इसको लिखने इतना से भाई लिख देंगे एग्जाम में तो हम लोगों को कितना मार्क आएगा 2 मार्क आएगा ठीक है तो क्या होगा लाइटिंग कमेटी ने उसको इंडियन गवर्नमेंट को एक रिकमेंड दिया था कि इंडिया इज ए एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री कृषि के डिपेंड अपन होने वाला एक कंट्री इंडस्ट्री में बहुत सारे बैंक हो गया कमर्शियल बैंक हो गया लेकिन सेपरेटली जो एग्रीकल्चर को देखे जो कृषि क्षेत्र को देखे ऐसा एक बैंक होना चाहिए ताकि हम लोगों का जो कृषि जो मतलब एग्रीकल्चर है उसको आगे ले जाए इस हिसाब से एक बैंक बहुत ही जरूरी है तो उस हिसाब को मान्यता दे के इंडियन गवर्नमेंट ने जुलाई 12, 1982 में सेपरेटली एग्रीकल्चर के लिए एक बैंक एस्टैब्लिश किया जिसका नाम दिया नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यही है बैंक का जो एस्टैब्लिश होने का मेन कॉजेस और ये मेन कॉजेस अगर इतना सा भी तुम लोग लिख दोगे तुम लोगों को 2 मार्क मिल जाएगा ठीक है तो एग्रीकल्चर बैंक का क्या रोल है बेसिकली ये 2 टाइप का रोल प्ले करते हैं एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन किसका एग्रीकल्चर का दूसरा रिफाइनेंस इंस्टीट्यूशन किसका
एग्रीकल्चर का। फाइनेंस जो दे रहा है एग्रीकल्चर में, चाहे वो भैंस पालने का हो, चाहे वो काऊ पालने का हो, चाहे वो पोल्ट्री फार्म के लिए हो, चाहे वो फिशिंग के लिए हो, चाहे वे कोई भी सीड हो, राइस हो, व्हीट हो, वगैरह वगैरह कोई भी सीड हो, हाँ हाँ, सभी में ये क्या देती है, रिफाइनेंस कर देता है। और ये फाइनेंस करने वाला तो बैंक है ही, साथ ही साथ ये एग्रीकल्चर का टॉप मोस्ट बैंक है। तो ये है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का मेन मोटो। ठीक है, तो आते हैं इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो पहले अगर हम लोग इस रोल को अगर बारीकी से देखें, आमी যদি ইয়াৰ ৰোলটো ভূমিকাটো যদি আমি অলপ পুংখানুপুংখভাৱে চাওঁ, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ অবজেক্টিভছ বিলাক আমি তাৰ মানে বেংকৰ আমি গমেই পাওঁ। ঠিক আছে, তো প্ৰথম কথাটো হৈছে ইয়াৰ কি হয় যে আমাৰ ইয়াৰ প্ৰথম যেটো পইণ্ট দিয়া আছে, give the undivided attention and purposeful direction in integrate rural development. Undivided attention অর্থাৎ বিখণ্ডীকরণ কি নহয়, মনোযোগ নহয়, পারপাসফুল অর্থাৎ উদ্দেশ্যমুখী কিহৰ এটা লক্ষ্য, এটা কৰ্মৰাজি কিহৰ কাৰণে, সেইটো হৈছে আমাৰ যি গ্ৰাম্যাঞ্চল আছে সেই গ্ৰাম্যাঞ্চলক কি কৰা, উন্নত সাধন কৰা। পাইছোঁ বুজি, যে গ্ৰাম্যাঞ্চল যি আছে সেই গ্ৰাম্যাঞ্চলক আমাৰ কি কৰা, উন্নত সাধন কৰা। তো কি কয়, इंटीग्रेट द रूरल डेवलपमेंट। हाँ, तो बेसिकली इसका क्या कारण था कि ये जो पर्पसफुल किसका है भाई, रूरल डेवलपमेंट के लिए, जो ग्राम्य अर्थनीति है उसको कैसे आगे लाए। क्योंकि ग्रामांचल में इंडस्ट्री नहीं होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, चाहे वो छोटा मोटा इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर। ठीक है, तो आते हैं दूसरे पॉइंट पर। तो क्या दिया है, एक्ट एज ए सेंटर पीस फॉर एंट्री एंड रूरल क्रेडिट सिस्टम नेशनल लेवल, एंट्री द रूरल क्रेडिट सिस्टम। तो इसका एक कारण था कि द pieces entries and the credit system in national level। क्योंकि ये pieces मतलब इसमें एक जरूरी बात मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ कि ये है, अगर कोई धान का खेती करता है तो ये कितनी दिन में उगते हैं, 3 महीने लगते हैं। कोई अगर गेहूं का खेती करता है तो कितना महीने लगते हैं, 3 महीने लगते हैं। कोई अगर सरसों का खेती करते हैं तो उनको उगने में 3 महीने लगते हैं। कोई अगर पोटैटो का खेती करते हैं तो 2 महीने या 3 महीने लग जाते हैं। ठीक है, मतलब एक खेती बारीकी से करने के लिए जो किसान लोग हैं, जो कल्टीवेटर है, उनको जो पैसा चाहिए, उसको पैसा मतलब एक 3 महीने के अंदर वो अगर प्लांटेशन कर दिया, उसके बाद प्लांटेशन करने के बाद उन लोगों के पास पैसा नहीं कोई दूसरे खेती करने के लिए। मतलब ये अनपीसफुल एक्टिविटीज क्या होता है, क्रिएट होता है। ठीक है, 2 या 3 खेती कर दिया, कोई अगर राइस कर दिया, कोई पोटैटो प्लांट कर दिया, उसके बाद जो खेती करने के लिए उन लोगों के पास क्या होता है, पैसे की कमी होती है, पैसे की खपत होती है। मतलब ये पीसफुल सिचुएशन नहीं रहते हैं। तो पीसफुल सिचुएशन के लिए क्या चाहिए, एंट्री द क्रेडिट सिस्टम, बेहतर क्रेडिट सिस्टम। जो कौन सा खेती किस महीने में होता है, कि ये क्यों लोन उन लोगों को चाहिए। ठीक है, धान अगर खेतों में उसको फेंक दिया और ये प्लांटेशन निकल के राइस बन के निकले, ऐसा तो नहीं है। इनमें कम से कम 3 महीना जरूरी है। तो ये बात समझ के नेशनल रूरल डेवलपमेंट बैंक ने इसको एक सिस्टेमेटिक तरीके से जो किसान लोगों को जो क्रेडिट जो उसको क्या कहते हैं, उसको क्रेडिट जो उसको चाहिए, फाइंडर है, उनको अच्छी तरीके से मिले। तो ये था दूसरा या ऑब्जेक्टिव्स। आते हैं तीसरे ऑब्जेक्टिव्स पर।
The act is the provide to the supplement of funding to the rural credit. इसका कारण एक था, to see that the act is that to providing the supplement मतलब फंडिंग, किसका? फंडिंग का, पैसा का, फंडिंग का, कैपिटल का सप्लीमेंट क्या करते हैं वो दिया है कौन? नाबार्ड ने, ताकि क्या मिले, जो रूरल क्रेडिट है उसको ये चीज क्या हो, ज्यादा से ज्यादा ग्रो करे। ठीक है, तो आती है पॉइंट नंबर 4 पे, इन्वेस्टिंग द क्रेडिट स्मॉल इंडस्ट्री, विलेज कॉटेज इंडस्ट्री और handicraft, other rural craft, artisan farmers. Okay, the arrangement of investment credit. अगर कोई किसान अगर खेती करना चाहते हैं, किस टाइप का वो खेती करेगा, किस टाइप का वो फार्मर है, पहले उसको ये तुम लोग ये फार्मर किस टाइप का हो। कोई अगर बोलेगा भाई मैं धान की खेती करूंगा, मैं प्लांटेशन करूंगा, सीड प्लांटेशन करूंगा, सरसों को करूंगा, ये कैटेगरी का है, अब मैं आएगा और इसको ये लोन दे दो। ठीक है, कोई अगर फार्मर जाके बोले कि मैं क्या करूंगा, फिश मेरे को क्या करना है, उसको पालना है, तो ये कैटेगरी में आएगा। कोई अगर बोलेगा कि मैं ये करूंगा, ये मतलब पोल्ट्री करूंगा, ठीक है, बॉयलर फार्म प्लांटेशन करूंगा, कोई बोलेगा नहीं मैं भैंस पालने का काम करूंगा, कोई बोलेगा नहीं मैं काउसीड करूंगा, कोई बोलेगा नहीं मैं बकरी का खेती करूंगा। ये सभी कुछ इसको कहते हैं कि इन्वेस्टिंग द क्रेडिट। इस हिसाब से उसको क्रेडिट सिस्टम प्रोवाइड करेगा कौन? नाबार्ड। साथ ही साथ जो विलेज में बड़े इंडस्ट्री ग्रो नहीं करते हैं, किसमें? विलेज इंडस्ट्री में, तो स्मॉल इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए पिंकल हो इंडस्ट्री हो, जैम का आचार का इंडस्ट्री हो, वगैरह वगैरह इंडस्ट्री में जो छोटे मोटे रकम चाहिए, और उस रकम को ना मिलने के कारण गांव के जो लोग हैं, रूरल के जो लोग हैं, उनको क्या नहीं मिलते हैं? पैसा का जो खपत होता है, अंडर डेवलपमेंट रहते हैं, उसको डेवलप करने के लिए एक मौका दे दो। इसका ये ऑब्जेक्टिव है किसका? नाबार्ड का। आई बात समझ में? तो आते हैं पॉइंट नंबर 5 पर, टू इम्प्रूव द क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बाय द इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। मतलब इसका इम्प्रूवमेंट है क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे क्रेडिट को क्या करे, डिस्ट्रीब्यूट करे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। किसके ऊपर? रूरल की अगर बात करें तो क्रेडिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एरिया में कमर्शियल बैंक नहीं होता है। कमर्शियल मतलब बैंक ही नहीं होता है। 25 या 10 या 15 किलोमीटर के अंदर, तो उस एरिया को अगर डेवलप करना चाहे, तो पैसों को अगर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे तो कौन करेगा? ठीक है, तो इसका एक मेन कारण इसका एक कॉज है कि नेबर बैंक, कमर्शियल बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो और अदर बैंक हो, कौन एरिया उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, किसका? फंड का। तो ऑब्जेक्टिव ये भी है कि अगर हम लोग पैसे दे रहे हैं, किस हिसाब से रूरल के लोगों में, जो ग्रामीण जीवन है उसमें इसको भेजे। कोई तो होगा, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन चाहिए, एक ऐसा मुकाम चाहिए ताकि हम लोगों को, जो जरूरतमंद लोग हैं, जो फार्मर है एक्चुअली, उनको पैसा उनको मिले, क्रेडिट उन लोगों को मिले, ताकि उनका क्या हो, बरकत हो, उनका लाभ हो, उनका प्रॉफिट हो। यही मोटो है किसका? नाबार्ड का, जो पॉइंट नंबर 5 में मेंशन किया हुआ है। साथ ही साथ रिहेबिलिटेशन ऑफ क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, मतलब अगर उसमें कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, ताकि वहां पे जाके एक इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करो, ताकि उन लोगों को ये जो क्रेडिट सिस्टम, जो ऑब्जेक्टिव है हम लोगों का, मतलब नाबार्ड का, वो ऑब्जेक्टिव्स पूरा ही पूरा वहां इस एरिया में, उस जगह पे इम्प्लीमेंट हो। ठीक है,
आई बात समझ में। पॉइंट नंबर 5 को आते हैं पॉइंट नंबर 6 में। रिफाइनेंस SLBD मतलब स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक, SSC स्टेट कमर्शियल बैंक, RRB रूरल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। मतलब अगर उस एरिया में नाबार्ड पूरा प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा है तो जो नेबर बैंक है, चाहे कमर्शियल बैंक हो, चाहे लैंड डेवलपमेंट हो, चाहे रीजनल रूरल बैंक हो, चाहे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो, उन लोगों को एकजुट करके जो नाबार्ड का जो ऑब्जेक्टिव्स है पैसे भेजने का, फार्मर को पैसे देने का, स्मॉल इंडस्ट्री को आगे लाने का, हैंडीक्राफ्ट को आगे लाने का, हाँ जो जो सुविधाएं नाबार्ड दे रहा है उनको क्या करे, पूरा ही पूरा इम्प्लीमेंट हो। मतलब सभी इंस्टीट्यूट को क्या करे, जो रूरल एरिया में है उन लोगों को एक साथ जुड़ के उन लोगों को फायदे पहुंचाना ही नाबार्ड का किसका objectives है। You would have to think that the NABARD had been the implementing and accommodate cooperation between the SLDB, SSC, Rural Development Bank and Commercial Bank, and they have been the combination. What are the main objectives of NABARD? To combination of those banks and given the properly do the utilization of the fund for the rural people. Okay, for developing their फार्म इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट, एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वगैरह वगैरह सब कुछ एवरीथिंग। ओके, अंडरस्टूड। आते हैं पॉइंट नंबर 7, कोऑर्डिनेट द वर्किंग एंड डिफरेंट एजेंसी एंगेज इन डेवलप द रूरल एंड रीजनल लेवल। अगर ये अगर कमर्शियल बैंक, SCB, SLDB, commercial bank, RRBs, or the distribution of agriculture bank, उनको अगर ये फाइनेंस नहीं दे पा रहे हैं, मतलब कोई एक ऐसा एजेंसी क्या करो, क्रिएट करो ताकि जो रूरल का जो इम्प्लीमेंट वाला जो ऑब्जेक्टिव्स है किसका, नाबार्ड का, पूरा ही पूरा उन लोगों को फायदा पहुंचे। इस हिसाब से ये कोऑर्डिनेट करते हैं डिफरेंट एजेंसी के साथ, ताकि जो रूरल का जो मेन फंडा है, उन लोगों का बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है, उसको क्या मिले, पूरा योगदान मिले। किसको, जो रूरल का जो लोग है। आई बात समझ में। पॉइंट आते हैं लास्ट पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 8, टू इंस्पेक्ट द मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएट द प्रोजेक्ट। और साथ ही साथ सबसे जरूरी काम, जब पैसा दे दिया काम खत्म। कोई ऐसा करता है, बाप से पैसा लेते हैं, लड़का क्या करता है, भाई मेरे को ट्यूशन की फीस चाहिए, मेरे को कॉलेज में देना है, एक्सेट्रा। अच्छा, मुझको ये करके कोई हिसाब नहीं रखते हैं। मतलब लड़का उस टाइम से लड़का गया हने न হয় যে মোক দেউতা কিহত লাগে, টিউশনত লাগে, মোক কলেজত লাগে, মোক অমুকত লাগে, মোক তমুকত লাগে, আৰু দেউতাকে পইচাৰ হিচাপ নহয়। যদি পইচা বেছি থাকে দেউতাকৰ, কম পইচা হ'লে হিচাপ ৰাখোঁ যেনে আমি ৰাখোঁ, ঠিক আছে। তেতিয়াহ'লে হিচাপ যদি নাৰাখে, ক'ত ফাইনেন্স কি কৰিলে, ইউটিলাইজ কৰিলে, ক'ত ফাইনেন্স ব্যৱহাৰ কৰিলে, তাৰ মানে কি, ইনস্পেকশ্যন হোৱা নাই, ফাণ্ডৰ কি প্ৰপাৰ ইউটিলাইজ হ'ব নে टोटली की होब, डेमेज होब, ऑब्वियसली डेमेज होब। सो डेमेज जाते নহয়, फांडবিলাকৰ प्रपार ইউটিলাইজেশ্যন হয়, তাৰ কাৰণে কি কৰে নাবাৰ্ডে নিজাববীয়াকৈ কি কৰিব, তাৰ ওপৰত কি ৰাখে, ইনস্পেকশ্যন ৰাখে, অনুসন্ধান ৰাখিব, তাৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিব, তাৰ ওপৰত কি কৰিব, মনিটৰিং কৰি থাকিব যে কামবিলাক কেনেকৈ চলিছে। এইবিলাকে হৈছে আমাৰ নাবাৰ্ডৰ উদ্দেশ্য। ঠিক আছে, তোমালোকে বুঝি পাইছা, একদম সহজ। এইখিনি তোমালোকে পঢ়িবা, আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে তেতিয়াহ'লে মোক নিশ্চয় মোক কল কৰিবা। মই এইখিনি আকৌ বেছিকৈ ইলাবৰেট কৰাৰ কাৰণে কি কৰিম, মই তোমালোকৰ লগত সহযোগিতা আগবঢ়াম। ধন্যবাদ।